یہ معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک جانب وہ 7 رضوی والا معاملہ اور انس رضوی والے معاملے کو بھی دبا دیا گیا ہے، کیا اس کو کسی بلیک میلنگ ٹول کے لیے استعمال کیا جائے گا مریم نواز کی حکومت کے خلاف؟ کیونکہ جو محسن بیگ جیسے لوگ ہیں جو ان کے اپنے بہت قریب ہیں طاقتور حلقوں کے، وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ مریم نواز کے سر سے ہٹ چکا ہے. یہ ہے آپ اسے کہیں فیک نیوز. ہاں، یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کیونکہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا ہوا ہے، اور ایکسٹینشن کے وقت ایک ایکسٹینشن ہے، دوسرا ہے پبلک پرسیپشن. کیونکہ مرید کے بعد جو قتل عام ہوا اس میں محسن نقوی صاحب کی موجودگی، وہاں پہ موجودگی ظاہر کرتی ہے. اسلام آباد پولیس یہاں سے گئی اور سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد جو معاملہ وہاں پہ زیادہ بگڑ گیا. پھر وہاں سے ڈی وی آر اور سارا ریکارڈ، ڈیجیٹل ریکارڈ وہاں سے غائب کر دیا گیا مرید کے شہر سے، اور گھر گھر جا کر اور وہ کیا گیا. اب وہ ایک الگ سے ایشو بنا ہوا ہے. پبلک سینٹیمنٹس بہت بالکل اپوزٹ ہیں. پھر ان کا خیال نہیں تھا کہ تمام اہل سنت والجماعت کی جو اسکول آف تھاٹ ہے، سارے کا سارا بریلی اسکول آف تھاٹ، وہ اکٹھا ہو جائے گا. وہ سب اکٹھا ہو گئے. تنظیمات تھی ان کی ساری کی ساری اہل سنت والجماعت کی، وہ اکٹھی ہو گئیں، کیونکہ 330 مساجد ان پہ انہوں نے کنٹرول سنبھالا، اور 238 مدرسوں پہ. تو وہ بھی ایک ہی سنت اہل سنت والجماعت بریلوی اسکول آف تھاٹ کے. تو یہ کوئی ان کو نہیں، ان کو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. اسی لیے وہ سب کے سب جب آ گئے ہیں تو اب یہ سارے کا سارا ملبہ وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ پہ ڈال دیا جائے یا پنجاب حکومت پہ ڈال دیا جائے. اور مریم صاحبہ نے جو میسج کنوے کیا ہے تحریک لبیک کو بھی اور علماء کرام کو بھی، کیونکہ ان کے بہت اچھے مراسم ہیں مفتی راغب نعیمی صاحب کے ساتھ، اور ان کو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنایا ہوا ہے. اور وہ بھی ان کے ذریعے جو پیغام بھیجا مریم صاحبہ نے، ان کہہ رہی کہ اس میں ہمارا کوئی لین دین نہیں، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور یہ سارا کنٹرول کر رہے تھے محسن نقوی صاحب، تو وہی ذمہ دار ہیں. تو پیچھے سے یہ اطلاعات دی جا رہی ہیں. تو ان حالات میں یہ جو ہمارے محسن بیگ صاحب یا اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، یہ بیسیکلی ڈائیورژن ہے. اور ڈائیورژن اس لیے کہ پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو یہ میسج کنوے کیا جا سکے کہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ اب نہیں ہیں. اور اسی طرح کی اطلاعات جب 3 سال پہلے انہی دنوں میں جب عمران خان صاحب آرمی چیف کے ایشو کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میرٹ پہ آرمی چیف کا تقرر ہو، تو اس وقت بھی جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو ایسے پیغامات بھجوائے گئے تھے کہ میں نیوٹرل رہوں گا. اور میں ان شخصیات کو 2-3 شخصیات کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا. اور ان میں یہ ایک ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچایا گیا. پھر 2-3 اور شخصیات ہیں جو غیر سیاسی تھیں، ان کے ذریعے بھی کامن فرینڈ جو تھے جنرل عاصم منیر صاحب کے اور عمران خان صاحب کے، ان کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ میں نیوٹرل رہوں گا. ابھی بھی اسی طرح کی وائبس، اسی طرح کی میسیجنگ ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم ان کے پیچھے نہیں ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. سر ایک جانب فیصل ڈاکٹر کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات، اور دوسری جانب جو پاکستان کا مین اسٹریم ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر کھل کر معیشت کا جو بگاڑ ہے اس پر بات ہو رہی ہے. یہ سب بھی ڈائیورژن کے لیے یا عمران خان کو میسیجنگ کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی میں اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں. اس کی ریزن ہے کہ جتنی دفعہ بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان انبن ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا وزن تھا جنرل صاحب کا وہ مریم صاحبہ اور نون لیگ کی طرف تھا. انہوں نے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالا. اور جبکہ پچھلے دنوں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور مریم صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے. اور یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل کوئی 2% کی عزت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. اور حالانکہ ضمنی الیکشن میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ ضمنی سیٹیں خالی ہوئی ہیں، اس میں ایک پیپلز پارٹی کو دی جائے گی اور باقی نون لیگ کو دی جائیں گی، تو اس پہ بھی گڑبڑ ہے. تو پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں دوبارہ سے، جنرل صاحب ملتے ہیں زرداری صاحب سے، اور پھر اور ملاقاتیں ہوتی ہیں. پھر پرانی تنخواہ بحال اور 1 مہینے کی مہلت دے دی جاتی ہے. الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ 1 مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے. تو بیسیکلی 3 پھر میں کہوں گا کہ آپ چلے جائیں اکتوبر 2022 میں چلے جائیں،
उस वक्त भी जो जनरल बाजवा कर रहे थे ना, जनरल बाजवा क्या कर रहे थे उस वक्त, इमरान खान साहब को भी के साथ भी एंगेज किया हुआ था कि जनाब मुझे आप एक्सटेंशन के लिए फेवर करें तो मैं खुद ही इलेक्शन करवाऊंगा और बड़े फ्री इलेक्शन करवाऊंगा। और फिर वो शहबाज शरीफ साहब से अलग से मिल रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें। नवाज शरीफ साहब की अलग से मिन्नत समाजत की जा रही थी कि मुझे एक्सटेंशन दे दें। जो वो उस वक्त कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के साथ अलग डील कर रहे थे, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब अलग कर रहे थे, इमरान खान साहब के साथ अलग कर रहे थे। इस वक्त भी आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सबके साथ अलग अलग पैकेज डील करना चाह रहे हैं। एक ग्रुप को लगाया हुआ है कि आप इमरान खान साहब के साथ बात करें, दूसरा शहबाज साहब तो खैर उनके हाथ में है, नवाज शरीफ एंड मरीम नवाज, इनके साथ बात करें। तीसरा विंडो उन्होंने खोला हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ कि उनसे बात की जाए, तो जहां से अच्छा पैकेज मिल जाए तो वही उठा लिया जाएगा। तो असल में वो 28 नवंबर वाला मामला चल रहा है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई सीरियस किस्म के इनके आपस में कोई मसाइल व अफकार है। सर बताइएगा नवंबर में क्या होने जा रहा है? सड़कें गर्म होने जा रही है, आपको लग रहा है कोई बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हो सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है इमरान खान भी ताकीद कर चुके हैं, पार्टी को तमाम तरह हिदायत जारी कर चुके हैं, वक्त आने पर बताया जाएगा। अगर देख रहे हैं आप तो क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, एक अटेम्प्ट तो होनी है। उसकी वजह यह है कि इस तरीके से मामला चल नहीं सकते। और ये एक्सटेंशन का कानून, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि एक्सटेंशन का जो कानून है इसको कौमी जुर्म करार दे देना चाहिए और मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए और ये सफा ही फाड़ देना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि हर 3 साल के बाद ये खेल खेला जाता है और 2-3 महीने पहले, जैसे नवंबर के आने से 2 महीने पहले ही ये अखाड़ पिछाड़ शुरू हो जाती है और पॉलिटिकली इंस्टेबल किया जाता है और फिर उसका असर हमारी मईशत पे पड़ता है। तो ये खेल शुरू हो जाता है हर 3 साल के बाद एक्सटेंशन का। तो इसको वैसे इसका सफा फाड़ देना चाहिए तो ये मामला ही खत्म हो और एक कानून हो। और फिर उसके बाद ये एक और काम करना चाहिए कि आर्मी चीफ और जो 3 स्टार जर्नलों के दरमियान जो मराआत का बहुत फर्क है, उस मराआत के फर्क को कम कर देना चाहिए, उन मराआत का खात्मा करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी ऑनरेबल जजेस के सिर्फ तनख्वाह में थोड़ा बहुत फर्क है और एक घर बड़ा मिलता है, बाकी तमाम जजेस बराबर होते हैं, तमाम की पेंशन भी इक्वल होती है एक 19-20 के साथ। वैसा ही कर देना चाहिए आर्मी चीफ का भी पैकेज आफ्टर रिटायरमेंट, ताकि ये जो एक अट्रैक्शन है कि जनाब मुझे इतने प्लॉट मिलने हैं और इतना सब कुछ मिलना है, तो वो जब ये खत्म कर देंगे, माली मफादात को जरा कम से कम कर देंगे तो ये भी होगा। फिर एक और काम करना चाहिए क्योंकि आर्मी चीफ के जो इख्तियारात हैं उसको एक इदारा जाती इख्तियारात उसको इदारा जाती सतह पे लाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ जो है वो स्याह सफेद के मालिक हैं और वो इस हद तक हैं जी के एक होता है जी हालत जंग में अथॉरिटी, हालत जंग में एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए। हालत अमन में जो बाकी मामलात हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उसमें बेलगाम आज़ादी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पे कदगने हैं और बाकी अथॉरिटीज पे कदगने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री पे कदगन है, पार्लियामान पे कदगन है, आइन ने उन पे कदगने लगाई हुई हैं, इसी तरीके से बहुत सारे इख्तियारात पे कदगने लगानी चाहिए और उसको इदारा जाती सतह पे लेके आना चाहिए, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल को इतना मजबूत करते हैं। ये सारे मसाइल ही असल में वहां से शुरू होते हैं। तो इसीलिए जब तक जो भी आता है वो फिर आके वापस जाने का नाम नहीं लेता। और ये कैनी साहब ने एक एक्सरसाइज शुरू की, उन्होंने 6 साल लिए, फिर बाजवा साहब ने 6 साल लिए और अब वो मुद्दत 5 साल कर दी गई है। अब मजीद 5 के बजाय अब 10 साल तक ये मामला चलेगा कि एक आर्मी चीफ आया करेगा, वो कहेगा मैंने 10 साल हिलना ही नहीं है। और फिर आगे आपने रिटायरमेंट की एज भी खत्म कर दी, जो कैप लगी हुई थी 64 की वो भी उड़ा दी। और इसलिए अब यही यूं समझें कि कोई भी आर्मी चीफ आएगा और वो कहेगा कि मैं तो हयात हूं और मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो इस बुनियादी कानून को ही छेड़ना चाहिए और इसके लिए मैं समझता हूं कि फौज के अंदर से भी जो कोर कमांडर्स हैं उनको भी, और फिर चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर उसको मजबूत करना चाहिए। एयर चीफ, नेवल चीफ जो हैं उनके ऊपर तमाम जो इक़दामात हैं उन सब के एक
बोर्ड बनाना चाहिए ताकि एक इज्तिमाई कलेक्टिव विजडम हो। और फिर खास तौर पे जो फॉर एग्जांपल एक और काम किया जाता है कि अब इनकी जो रिटायर्ड जर्नैलों की, रिटायर्ड फौजी अफसरों की, जवानों की, उनकी पेंशन, उनके माली मफादात और उनकी माली जो मामलात हैं वो भी कंट्रोल इस वक्त करता है GHQ, और उसको भी फिर इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। हमने देखा जनरल अमजद शुएब साहब को जिस तरीके से किया गया, रिटायर्ड जर्नैलों ने खतूत लिखे, उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयां की गई, और बहुत सारे जर्नैलों पे इस वक्त जुबाबंदी है, वो नहीं बोल सकते, वो अपनी बात नहीं कर सकते, काउंटर नैरेटिव नहीं दे सकते। तो ये जो एक डिक्टेटरशिप है, मुकम्मल तौर पर उस डिक्टेटरशिप का खात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने फौज को बतौर इदारा मजबूत करना है, और इसका टेन्योर कम कर देना चाहिए ताकि एक जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पहले से मौजूद है 26वीं गैरानी तरमीम वाला नहीं, ये पिक एंड चूज वाला मामला खत्म कर देना चाहिए। 2 साल आर्मी चीफ की मुद्दत हो, और जो सीनियरिटी के वाइज आए और आके 2-2 साल अपनी ड्यूटी दें और चले जाएं, और उनका जो ऊपर का जो एक बहुत ज्यादा फर्क है आफ्टर रिटायरमेंट, जो एक बहुत बड़ा ह्यूज पैकेज जाता है, वो जमीनों का, प्लॉट्स का, कमर्शियल प्लॉट्स का, वो खत्म कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है सारी चीजें, बहुत सारी मामला ठीक हो सकते हैं। साबिर साहब, इमरान खान तो किसी और ही मूड पे दिख रहे हैं, आपने देखा होगा उन्होंने तो कहा है पार्टी को मुरीद किए जाके जलसा करें। इमरान खान साहब बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि 4 कत्लेआम हो चुके हैं जी, 4 वाकयात हुए हैं। 9 मई का हुआ फाल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसमें कोई अब शक नहीं रहा। उसके बाद 26 नवंबर हुआ, फिर आजाद कश्मीर हुआ, फिर मुरीद के हुआ। ये एक नया जो ट्रेंड चला है, ये सानिया मॉडल टाउन से स्टार्ट हुआ था, और सानिया मॉडल टाउन के अगर मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचा दिया जाता तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होना था, लेकिन वो भी अभी इंसाफ उनको भी नहीं मिला। और 4 वाकयात ये पिछले 3 सालों में हो चुके हैं, तो इन वाकयात को असल में रोकना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप देखें पंजाब में एक क्या बनाया है महकमा CCD, 500 पुलिस मुकाबले हुए हैं और 670 बंदे जो हैं वो मारे जा चुके हैं। वो मुजरिम थे नहीं थे, इसका फैसला अदालत को करना है। आप अदालत में पेश करें, जो एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें और वहां पे उनको सजाएं दिलवाएं। ये जो पुलिस मुकाबले हैं मुबैना तौर पर, वहां पे इस तरीके से बंदों को मुजरिम का कितना ही खतरनाक मुजरिम है उसको उस फोरम पे लेके जाएं, स्पीडी ट्रायल करवाएं। और ये अगर आप फ्री हैंड दे देंगे तो फिर गुनाहगारों के साथ बेगुनाह लोगों का भी फिर कत्ल होता है। सर आखिरी एक सवाल है, तारिक फजल चौधरी ने कहा है बनीकाला शिफ्ट कर सकते हैं इमरान खान को। मोहसिन नकवी ने पिछले अरसे में कहा कि ऐसी तमाम खबरों में सदाकत नहीं है, जबकि इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं कि कभी बनीकाला, कभी नथिया गली, कभी जमान पाक की ऑफर्स मेरे पास आती है। तो फिर इमरान खान तो दोबारा सच्चे साबित हो गए, मोहसिन नकवी ने ये झूठ बोला। ये बात सही है, उनको ऑफर्स तो, इसमें तो कोई शक नहीं है, ऑफर्स जाती रहती हैं, लेकिन इमरान खान साहब कोई इसको ऑफर कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अभी भी जो की है ऑफर, सिंपल ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने 2 बातें हैं, इसके 2 इशारे हैं। एक तो अगेन वही कि देखें जी हम तो तैयार हैं, हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से तो आप एप्लीकेशन दे दें तो हम आपको मुंतकिल कर देंगे, लेकिन उसके बाद इनकी अथॉरिटी कितनी है वो है नहीं। दूसरा ये एक और काम करना चाहते हैं, वो ये है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी एप्लीकेशन आ जाए तो उसको फिर ये ढूंढना पीटेंगे कि देखें एनआरओ मांग लिया हमारे से और ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये बनीगाला जाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना वजन है।